السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام اساتذہ اکرام کو گنیت گن کا پروگرام کے تعلق سے چند باتیں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ تو گنیت گن کا پروگرام ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن گورنمنٹ آف کرناٹک کی جانب سے رائج کیا گیا ہے۔ تو یہ کاریہ کی جو کیپڑی آلریڈی ہم تمام مدارس میں دی گئی ہے، اس کا PDF نکال کر کے ہمیں اسکولوں میں رکھنا ہے۔ تو یہ اساتذہ کی KPD میں اس پروگرام کے تعلق سے اس کا پریچے ہوگا، اور فون پر تدریس کے مقاصد کے تعلق سے اور علم ریاضی پروگرام میں اساتذہ کا کردار کیا ہوگا، اور اسے امپلیمنٹیشن سائیکل یعنی عملی جامع چکر کے مراحل میں کس طرح سے ہمیں گزرنا ہے، اس تعلق سے آپ کو میں تفصیل سے معلومات دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ حکومت کرناٹک کی طرف سے رائج کردہ گنیت گن کا پروگرام تیسری، چوتھی اور پنجم جماعت کے طلباء کے لیے علم ریاضی کی بنیادی اعمال، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے مرکز بنا کر فون کے ذریعے طلباء کو انفرادی طور پر بنیادی اعمال سکھانا۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 2025 اور 26 میں کل 17 ضلعوں میں 93 بلاک تعلقہ سطح میں 14,000 اسکولوں میں 35,000 اساتذہ کو تربیت دے کر اسے امپلیمنٹ کیا گیا تھا۔ اب اس 2000 سال رواں 25-26 میں اس پروگرام کو 35 ضلعوں میں 244 تعلقوں میں تقریباً 75 اساتذہ کو اور 38,548 اسکولوں میں اس پروگرام کو رائج کیا گیا ہے۔ تو اس تدریسی فون پر مبنی تدریس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو اس کے مقاصد یہ ہیں کہ صرف ایک ہی طالب علم کا درس دینا اور انفرادی درس کرنا، اسکول کی جسمانی حاضری سے پرے بچے کو انفرادی طور پر اس گھر کے ماحول میں تدریس کرنا۔ تو یہ اس کے بنیادی مقاصد تھے۔ تو آئیے گنیت گن کا پروگرام میں اساتذہ کا کردار کیا ہوگا، اساتذہ کو کیا کرنا ہے۔ تو اساتذہ کا اس پروگرام میں سچی لگن کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، خوشی سے شامل ہو کر دیے گئے مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے بچوں کے تعلیمی معیار کو بڑھانا، اور دوسرا طلباء کی پہچان کرنا اور ان کا انتخاب کرنا۔ پھر اس کے بعد ودیارتھی متو پوشکر اریوی موڈسوದು، طلباء اور والدین میں بیداری پیدا کرنا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے بچے کا انتخاب یا طلباء کو پہچان کر کے کس طرح سے ہمیں انعقاد کرنا اس کا، تو استاد جو ہے تیسری، چوتھی اور پانچویں جماعت کے طلباء کو علم ریاضی کے بنیادی اعمال، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم سیکھنے میں کے لیے جو بچے کمزور ہیں، جن کو سیکھنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، جن کو ضرورت ہے کہ وہ علم ریاضی کے بنیادی اعمال کو سیکھتے ہیں، ہم اساتذہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے جماعت میں کون سا بچہ علم ریاضی میں کمزور ہے اور اس کی کون سی سطح میں، کون سے مرحلے میں وہ کمزور ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو ان بچوں کی پہچان کر کے 6 ہفتوں کے لیے جو اکتسابی مرحلہ ہوتا ہے، اس میں ان طلباء کو میں سے 4 طلباء کو انتخاب کرنا ہے۔ تو دوسرا جو مقصد ہے اس کا
ಅಸಾತಿಜಾ का किरदार विद्यार्थी ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು अरवी ಮೂಡಿಸುವುದು, तलबा और वालिदैन में बेदारी पैदा करना। तलबा में और वालिदैन में इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करके इसके मकासद को मालूमात फ़राहम करना और तलबा और वालिदैन के माबीन अच्छा रब्त पैदा करना, उनकी फ़ुर्सत के औक़ात के ताल्लुक़ से तबादला ख़याल करके उनसे मंजूरी लेना। और तीसरा जो है आरंभिक मौल्यमापन, जिसे बेस लाइन तदरीस कहते हैं, तो शुरुआती जांच जिसे हम कहते हैं, तो इसमें हर इक्तिसाबी मरहला के शुरू से ही इल्म रियाजी के चारों बुनियादी अमाल में तलबा की दर्स किताब को पहचानना, उसकी दर्स की कैफियत को, उसकी हालत को, उसकी कमज़ोरी को पहचानना। उसके बाद व्यक्तिक बोधनी, इसी इनफरादी तदरीस, स्कूल के औक़ाफ़ के बाद हर तालिब इल्म को 40 मिनट अपने हालात के मुताबिक में तब्दीली आप कर सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए दर्स व तदरीस कराना, एक दरसी कॉल पर सिर्फ़ एक ही बुनियादी अमाल को कराना, इसलिए कि एक उस्ताद की तरफ से 4 इक्तिसाबी कॉल्स होंगे। और दूसरा वालिदैन ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು, वालिदैन के साथ मजबूत रिश्ते या ताल्लुक़ात को रखना या उनमें मजबूत रिश्ता पैदा करना, और वालिदैन को तालीम में खुशी से शामिल होने की दिलचस्पी पैदा कराना, और फ़ोन कॉल का जो दर्स व तदरीस में मुसलसल बच्चे को, तलबा को शामिल कराना और मुस्बत सोच रखने और मुस्बत रवैया इख्तियार करने की तरग़ीब देना। ख़ुद उस्ताद भी वालिदैन के साथ और तलबा के साथ मुस्बत रवैया इख्तियार करना, खुलूस के साथ बच्चों के साथ दर्स व तदरीस करने की कोशिश करें। उसके बाद विद्यार्थी जो उत्तम संबंध, देखो यहाँ पर जब अभी जो बताया मैं, तलबा के साथ मजबूत रिश्ता बनाना, एक बेहतर अच्छे ताल्लुक़ात रखना, उसके साथ प्यार मोहब्बत से, अजीज़ निकासारी से तलबा को इनफरादी हिदायत देना और बच्चों में वो सताइश पैदा करना और मुसलसल बच्चों को हिम्मत देना, उसमें हौसला अफजाई पैदा करते हुए बुनियादी अमाल के दर्स व तदरीस करने की कोशिश करना ज़रूरी है। उसके बाद अंतिम मौल्यबा बने, यानी ख़त्माई तशख़ीस जिसे हमें कहते हैं एंड लाइन। तो 6ठे हफ्ते में ये फ़ोन पर इक्तिसाबी जो मरहला होता है, आखिरी हफ्ते में हर तालिब इल्म का फ़ोन पर तदरीस के बाद बच्चे का इसकी इक्तिसाबी महारत या उसकी मियार को पहचानने के लिए ये आखिरी जो अंतिम मौल्यमापन जिसे हम कहते हैं ख़त्माई तख़शीश। उसके बाद बोधना करेगा दाखिलाती, तो इक्तिसाबी तदरीस के दस्तावेज़ात फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो आपको दौरान वालिदैन की मंजूरी से लेकर उनको रिकॉर्ड कर रखना, और उनकी क्या हमारे आपको जब फ़ोन लगाया जाता है तो उस फ़ोन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो क्या आप इसकी इजाज़त देते हैं, इस तरह से सवालात करके और उस फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड बनाकर रखना। फिर उसके बाद अनुष्ठान चक्र, इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, जिसे हम अमली जामा पहनाना कहते हैं, या तदरीसी जो चक्कर होता है, एक साइकिल होता है, मरहले होते हैं इसमें। तो ये तदरीसी मरहले क्या हैं, यानी फ़ोन के ज़रिए तदरीस में 3 दर्जे दिए गए हैं। तो एक पहला जो होता है बच्चे की पहचान कराना, बच्चे के साथ ताल्लुक़ का तारुफ़ कराना, और जो शुरुआती जांच होती है उस जांच को फ़ोन के ज़रिए तदरीसी कॉल्स करना, कितने 4 तदरीसी कॉल्स करना, और ख़त्माई क़दर पैमाई करना। ये 3 दर्जे पर क्या है ने जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन साइकिल मुकम्मल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, अनुष्ठान चक्र कहते हैं। तो इसमें असातिज़ा को क्या करना है, असातिज़ा हर तदरीस के चक्कर के लिए 4 तलबा को फ़ोन के ज़रिए तदरीस के लिए इंतखाब करना, और इंतखाब के दौरान बुनियादी अमाल में सबसे कमज़ोर और आला दर्जे के बच्चे को तरजीह देना या उसे अहमियत देना, जिसमें मिसाल के तौर पर हमारी सबसे आला दर्जा होता है 5वीं क्लास, तो 5वीं क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चा जो हम हमारे जमाती कमरे में हम जानते हैं, पहचानते हैं,
उन बच्चों का हम क्या है सबसे पहले इंतखाब करके 4 बच्चों का इंतखाब करके 4 बच्चों को 6 हफ्तों के लिए, एक बच्चे को 6 हफ्ते के कॉल होगा, जिसमें एक पहला कॉल शुरुआती कॉल होगा, दूसरा जिसे बेसलाइन कहते हैं, जो बाकी के 4 कॉल्स होते हैं बच्चे के तदरीसी कॉल्स होंगे, और आखिरी जो है एंड लाइन जिसे कहते हैं ख़त्माई तशख़ीस जिसे कहते हैं। एक तदरीसी चक्कर को मुकम्मल होने में असातिज़ा को कुल 4 तलबा का इंतखाब करना, और 4 तलबा को 4 कॉल तदरीसी कॉल होंगे, और एक शुरुआती कॉल होगा, और एक ख़त्माई यानी एंड लाइन कॉल होगा। ये तालीम साल में 4 खदर फ़ोन होंगे, तो जिसे हम चक्कर या मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा की वीडियो में किस तरह से हमारे जमाती फ़ोन के ज़रिए क्लास लेना है, और उसमें कौन कौन से पहले हफ्ते में क्या करना है, दूसरे हफ्ते में क्या करना है, तीसरे हफ्ते में क्या करना है, चौथे हफ्ते में, पाँचवें हफ्ते में और छठे हफ्ते में किस तरह से फ़ोन कॉल के ज़रिए बच्चे को हमें दर्स व तदरीस करना है, और कौन कौन से सन्निवेश जो मनाजिर हमारे सामने आते हैं अलग अलग किस्म के, इंशाअल्लाह उन तमाम मनाजिर पर मैं आइंदा के आने वाले वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, और बेसलाइन को किस तरह से करना है, और बच्चे का इंतखाब किस तरह से करना है, इंतखाब करने के बाद बच्चे को किस तरह से हमें उसकी पहचान करके फ़ोन के ज़रिए हमें क्या है दर्स व तदरीस कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में बनाकर आप तक भेजने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।